Hello everyone. First of all, I would like to wish you all safety and well-being. In this situation of COVID pandemic, it's very important for us to be safe. And by being safe ourselves, we can ensure the safety of our near and dear ones. Also, in this situation, the people in rural areas, they are facing a lot of problem. And because of maybe the development, they doesn't have a proper development. So today we would like to talk about rural development. How development should be taken in villages, how this is a very important topic and we should focus on this topic. And for this, to throw light on this topic, I have called a brother, Jyotiranjan Boro, who is a teacher in profession, and also he is someone who we could reach out to when we need to know about something, or he guides us in whichever way possible. So first of all, thank you for coming. I hope you are well. Yeah. So today the topic we are going to discuss is rural development. How or what are the means or measures that should be taken, or how a rural area that can be developed? We are going to talk on that. So as we might or people might have some ideas about what is rural development, but not many, or not, it's not a focus area that is on the forefront. So first of all, I would like to ask you, what actually is rural development? Thank you. Thank you for having me here. अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो पता होगा कि आपको कि भारत में बहुत सारे ऐसे गांव हैं और ज़्यादातर लोग ऐसे रूरल एरियाज में अब अभी भी जीते हैं. सो रूरल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि उन जो भी जितने भी लोग उस रूरल एरिया पे जी रहे हैं उन लोगों के लाइफ को थोड़े इम्प्रूव करना इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द फील्ड. जैसे कि आप एजुकेशन पकड़ लो, आप कम्युनिकेशन, आई मीन जैसे जो कि ट्रांसपोर्टेशन है, और या फिर हेल्थ केयर, मिनिमल जो कि हेल्थ केयर है, ये सारी चीजों को उन लोगों के जो लाइफ है उनके क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव करना, इसी को हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये रूरल डेवलपमेंट है इन सम ऑफ. Means basically not only development in one field, Yeah. but पूरा whole development as a Yes, whole. yes. So thank you for your answer, bro. Then next, I would like to know: is there some ways, or how can we bring this issue to the forefront? Like this issue is to be given importance to. How can we do that? Are there some ways? अगर आप कहोगे कि ये किस तरह से फ्रंट में या फिर फोकस में लाया जाए, तो बेसिकली इंडिया जो है ये ज्यादातर लोग, मैंने आपको पहले ही कहा कि रूरल एरियाज में लिव करते हैं. तो फिर अगर देखा जाए उन लोगों का जो प्रॉब्लम्स है, उनके जो लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये सबसे पहला फोकस होता है. और ये जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है तभी से लेके अगर आप देखोगे, देयर आर सो मेनी प्लान्स, देयर आर सो मेनी, जो कि हम लोगों का जो 5 ईयर प्लान चलता है, तो उसी में से ये इंक्लूड रहता है कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें जीडीपी ये सब भी इंक्लूड हो जाता है. तो देखा जाए इसको फोकस में लाने की मुझे लगता है कोई ऐसा कोई वेज नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सबको दिखाई देता है. आप किसी पे भी कहीं पे भी It's like the problem or the issue is already there, but the what is happening is that it's not working as it Yeah. should be. Yes. So in that regard, what are the steps that we at individual level or government, are they missing somewhere, or they are doing what they should do? What do you think on that aspect? Yeah. So, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो बीइंग ए इंडिविजुअल पर्सन, आई एम आल्सो लिविंग इन अ रूरल एरिया, एंड फ्रॉम हियर टू सिंस फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई एम जस्ट सीइंग देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट वी हैव फेस्ड. हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक चीज में हम लोग को सर्वाइव करना पड़ता है. आपको तो पता ही होगा, आप अब अभी पढ़ रहे हो, अभी आप हायर स्टडीज के लिए जब आपको कहीं जाना होता है तो आपको हर एक चीज के लिए सर्वाइव करना पड़ता है. अभी आपको यहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज तक जाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज है, और बाकी सब तो है ही, जो कि हम लोगों का इकोनॉमिकली वी आर काइंड ऑफ वेरी वीक, वो सब तो है ही. हाँ, इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं, अगर आप बताओगे तो इंडिविजुअली हम बहुत कुछ कर सकते हैं.
लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अवेयरनेस. पीपल एक्चुअली डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू. यहाँ पे अगर आप किसी भी बात को कुछ लोगों के पास अगर आपको उस बात को लेके जाना है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम इन देयर ओन वे. क्योंकि आप अगर किसी भी बात को समझाने की कोशिश करते हो तो हर कोई आपके उस बात को समझ नहीं पाते हैं. इन देयर वे, वो जैसे समझते हैं उस तरीके से उन लोगों को समझाना पड़ेगा. या फिर मुझे लगता है कि इंडिविजुअली अगर कोई कैपेबल है, अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन है, तो मुझे लगता है जाके सबको बताना चाहिए उन लोगों को. हाँ, steps by themselves. यस, तो उन लोगों को बताना है कि ऐसे ऐसे करना है, अब आप लोगों को इस तरीके से जाना है, इंफॉर्मेशन जो है उन लोगों के साथ शेयर करना है, ये सब लगता है. और जहां तक बात रहती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने तो बहुत सारा काम किया हुआ है. जैसे कि रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. RCT नाम का एक प्रोग्राम है और उसे कहते हैं रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग. ये SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाई अप करके ये प्रोग्राम बनाया है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग. इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल या फिर कुछ भी हो, जैसे कि नावेडेज मशरूम्स की खेती करते हैं, आपको तो पता ही होगा. फिर आ गया पिगरी, या फिर जो मतलब बैल बकरी कुछ भी करे, मतलब और खेती बाड़ी भी करे, तो हर चीजों को लिए उन लोगों के पास एक प्रोग्राम है. तो वो लोग क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. एंड एट द सेम टाइम दोज हु क्वालिफाइड इन दैट ट्रेनिंग, वो SBI के साथ टाई अप कर देते हैं और SBI उन लोगों के पास जाके फिर उन लोगों को फाइनेंशियली एड प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग करो जो भी आप लोगों ने ट्रेनिंग लिया. सो दीज आर द थिंग्स गवर्नमेंट्स आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ सम NGOs एंड ऑल दैट. और ऐसे ही चल रहा है. और जहां तक NGO की अगर आप बात करोगे, तो मुझे लगता है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू NGOs आर डूइंग वेरी गुड इन आवर एरियाज. क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो प्लान होते हैं वो हमारे यहाँ पे पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं काइंड ऑफ look, yeah, They lack in the yeah, beginning. yeah. So in that respect, NGOs are doing good. Like they are spreading awareness Awareness. in to the people. डेवलपिंग कंट्री, हम लोग डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ये कहना भी उतना अच्छा नहीं होगा, ना कहना भी मतलब इतना होता नहीं है कि करप्शन जो है इंडिया में अभी भी बहुत सारे साइट्स में, बहुत सारे पोजीशंस में कहीं ना कहीं उस करप्शन से भी जो कि बेहतर प्लान्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पाते हैं. तो मुझे लगता है NGO जो है, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है. इन लोगों का काम यही होता है कि जो बीच में जो वो गैप टूट जाता है, मतलब गैप जो रह जाता है, हाँ, दे आर फिलिंग इट लाइक ए ब्रिज. तो मुझे लगता है NGO बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. So, as we know that education or agriculture, they are the most important backbone, we can say. They are the backbones of rural people which can develop them. So, let's talk about agriculture. The agriculture, the way agriculture is going on, or the way we are doing the agriculture, is there something missing? Yes, अगर आप एग्रीकल्चर की बात करोगे तो एग्रीकल्चर इज ए वेरी वास्ट थिंग. Yeah. हम एग्रीकल्चर में हर एक चीज को पकड़ लेते हैं. जैसे कि आप, अगर मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा पिगरी, या फिर कोई धोतरी कर रहा है, कोई बैल बकरी कुछ भी करे, मशरूम्स, धान की खेती, गेहूं की खेती, सरसों, जो भी है, दीज ऑल आर सम ऑफ इन एग्रीकल्चर. लेकिन जब हम रूरल एरियाज की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम पकड़ ले कि हमारे यहाँ पे दिस इज अ रूरल एरिया एंड वी आर फ्रॉम द रूरल एरिया. सो यहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर का मतलब लोग समझते हैं कि धान की खेती करना. सो वो एग्रीकल्चर जाके धान पे ही अटक गया है. बट हाँ, कहीं ना कहीं पिछले 2-3 या फिर 5-6 सालों से मतलब बहुत सारे लोगों ने, हम अगर कहेंगे कि जिनको ये इंफॉर्मेशन मिल गया, जिनको थोड़ा बहुत मालूम है, उन लोगों ने बहुत सारे फील्ड्स पे काम किया है. जैसे कि आप पिगरी का सेक्टर अगर आप देख लो हमारे रूरल एरियाज पे, तो पिगरी का सेक्टर आजकल थोड़ा बहुत बढ़ रहा है. एंड एट द सेम टाइम अगर आप कहोगे कि गेहूं या फिर सरसों, इसमें भी थोड़ा थोड़ा लोग कर रहे हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आई हैव रिसेंटली सीन ये जो भूत जोलोकिया, विच इज
वेरी इन डिमांड, light. या वेरी हाई इन डिमांड. सो उसका भी मैंने खेती होते हुए मैंने अब अपने रूरल एरियाज पे बहुत सारी जगहों पे देखा हुआ है. यू नो, सो लाइक दैट. तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर जो है उस एक ही खेती पे जाके मतलब लिमिटेड नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए एनजीओ या फिर जो ग्राम पंचायत है उन लोगों को भी स्टेप्स लेना चाहिए, एंड गवर्नमेंट शुड आल्सो टेक एक्टिव पार्ट इन इट, कहीं ना कहीं मुझे लगता है. और देखिए एग्रीकल्चर अगर आप बोलोगे तो देयर आर सो मेनी थिंग्स. वी हैव यू नो वो टेक्निक्स, जैसे कि अभी भी हम वही जो मतलब बहुत पहले करते थे गाय बैलों के साथ वही वाला खेती करते हैं. देयर आर सो मेनी अपडेट मशीन्स आर देयर, बट वी आर अनेबल टू बाय देम, क्योंकि वी आर फाइनेंशियली लैक. हमारे पास उतना फाइनेंस है नहीं कि हम कुछ करें लाइक दैट. But as you have already mentioned about the modern techniques of farming or the modern goods or things we utilize, so as now we can see that there are two terms, organic farming and conventional farming. As organic farming utilizes many organic things, so now it has become a little costly. So do you think the people in the villages they will be able to use those techniques? As because in conventional farming, it's like it's doing a lot of damage to the environment, like pollution, and the lands are becoming they are unfertile. They are becoming unfertile. So what do you think in this regard? हाँ, अगर कहा जाए अभी के जमाने में तो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है ये बहुत ही डिमांड में है. क्योंकि देखिए इतने हैवी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि आजकल खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं दे आर इम्पेक्टिंग आवर लाइव्स, दे आर ऑल्सो इम्पेक्टिंग आवर हेल्थ. इतने आप अगर देखोगे पहले की तुलना में तो नाउ बहुत सारे लोगों को कैंसर या फिर ये पहले अगर आप देखोगे तो कैंसर वॉज ए वेरी रेयर डिजीज, Yeah, बट नाउ इट्स अ कॉमन डिजीज. very common. हाँ, ये मतलब मात्रा फिलहाल नाउ बढ़ गया है. हाँ, जहां तक रही बात, ये तो हो गया हेल्थ सेक्टर की. तो जहां तक रही बात ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आई थिंक हाँ कॉस्टली मतलब क्या, देखिए वी इंडियंस हैव सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम. That's आपने वामी कंपोज का नाम सुना होगा. वामी कंपोज जो कि हमारे लोकल सिचुएशन में लोकली उसको ट्रेडिशनली उसको बनाया जाता है. एंड वर्मी कंपोज इज वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक. या Yeah. ऑर्गेनिक अगर आप फार्मिंग करना चाहते हो तो वर्मी कंपोज की जो मतलब होते हैं ये छिड़काव करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा है. वो इतना कॉस्टली भी नहीं है, वो आसानी से बन जाता है हमारे यहाँ पे. तो बाकी जो मतलब टेक्निक्स है जैसे कि कहा आपने कॉस्टली है, नो डाउट दे आर वेरी कॉस्टली. लेकिन हाँ, जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है जैसे कि वामी कंपोस्ट जो कि आसानी से मिल जाता है, तो मुझे लगता है हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए. But maybe people are not going Knowing to it, that yes, or people are utilizing not those. knowing it. People don't have any information about it, and for that purpose, NGOs and the government can take an active part in it. They could help the people to know about this. That you people can get all these things in a less cost. And even in your own place you can Yes, prepare that. yes, that's the thing. And so as we have already talked about farming, now I would like to shift a bit to education, as it is also one of the most important aspects to consider. So in villages we can see that nowadays people, that doesn't happen in city areas because most people send their students to paid schools, or they can afford that. But in villages people do send their students to government schools, and most now it has become a thought in people's mind that government schools are not that well, or well they cannot apply or educate the students properly. But what do you like to say about this? Yes, yes. It's a very, I think, very good question. And ऐसे सिचुएशन मैंने भी फेस किया हुआ है. बीइंग ए टीचर, आई ऑल्सो नो, मैंने भी प्राइवेट स्कूल्स में मैंने भी बहुत पढ़ा है और फिलहाल अब मैं गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी कर रहा हूँ. तो ये सिचुएशन मैंने तब भी देखा हुआ है, अब भी देखा हुआ है. Look, in my point of view, these are all
इन माइंड, ये माइंडसेट होता है लोगों का। और मुझे नहीं लगता है कोई भी टीचर्स कोई कम देता है कोई ज्यादा देता है, दे आर bound to give their 200% 300% And just they because, gives yeah, that in fact. and they gives it Yeah. बिकॉज देखिए आप अगर किसी प्रोफेशन में हो तो, और सबसे गुरु का जो प्रोफेशन होता है वो अलग होता है। मतलब आप कहीं भी कुछ भी पढ़ा रहे हो, कोई भी आपको ये नहीं सोच के पढ़ाएगा कि आप थोड़ा कम पर हो, हम आपको थोड़ा लेस एजुकेट करते हैं। दिस इज आई थिंक ऑल इन माइंडसेट। Just और a हाँ, mindset of the इस people. माइंडसेट। लेकिन जहां तक रही बात गांव की या फिर रूरल एरियाज की, देखिए एजुकेशन का प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा है। एंड कहीं ना कहीं ये कहीं पे माइंडसेट हो गया। देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में जो होते हैं इतने सारे लोगों को पढ़ाना होता है, कहीं ना कहीं हर चीज आप अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी देखोगे, सो दे आर प्रोवाइडिंग मिड डे मील, दे आर प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म्स, they are providing scholarships, they are providing the Free bags, books yeah, and free all. textbooks Yeah. and bags, you know, copies Pens. to write, pens, whatever they can, they are providing it freely। और कहीं ना कहीं ये सब जब करने जाएंगे तो मतलब स्टैंडर्ड जो रहता है कहीं ना कहीं हो जाता होगा, दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहां पे एजुकेशन कुछ खराब होता है, क्योंकि मैंने भी खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तो आई गॉट द चांस टू बी क्वालिफाई इन टेट एग्जाम एंड गॉट दिस पोजीशन राइट नाउ। सो मुझे नहीं लगता है कि ये सब होगा। It's only in the mindset of the माइंडसेट people. माइंडसेट लोगों के And माइंडसेट में होता है। that's the problem. हाँ, और आपने ये बात छेड़ी है तो मैंने आपको और एक बताऊंगा। और एक बात, आजकल के जो रूरल एरियाज में होते हैं लोगों के पास लेस इनकम होते हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन जो सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों ने बनाया हुआ है, काइंड ऑफ, मैं नहीं कहता कि हर एक में है, कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में जो प्राइवेट स्कूल्स या फिर जो इन देयर माइंड गुड स्कूल्स के जो डेफिनेशंस उन लोगों ने बनाए रखे हैं, तो उन स्कूल्स में भेजने की जो चाह है, उन चाह में उन लोगों ने कहीं ना कहीं तो ये कुछ मिस कर दिया होगा मुझे लगता है। जो कि बाद में जाके क्या होता है, एक बच्चा अगर पढ़ रहा है, आप उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, फिर 9 में जाके उस बच्चे को आप वहां से निकाल के किसी सरकारी स्कूल में डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस बिगड़ जाता है। एंड वो ड्रॉप आउट्स की जो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो बच्चा पढ़ना छोड़ देता है। ही डिडंट गेट दैट कंफर्ट जोन इन दैट पर्टिकुलर स्कूल। जिस स्कूल से आप 9 सालों से पढ़ रहे हो, कहीं से उसको आप निकाल के किसी स्कूल में डाल दोगे, तो उसका कंफर्ट जोन बनना तो मतलब डिसबैलेंस होना तो बनता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इससे बच्चों पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है, और ये होना नहीं चाहिए। People should need to change their mindset। Like they have to think and respect what they are getting. Yes, They should not go for things they can't afford to. yes। Yeah. एसएमएस में एक कहावत है, अगर आपको पता होगा, अठवा सा फेंक मिली बात। दैट मीन्स यू जस्ट आप जो मच्छरदानी है उससे बाहर अगर आप अपना पाँव निकालोगे तो मच्छर आपको काटेंगे जरूर, इसलिए आप बाहर पाँव मत निकालो। That's an absolute truth. So, as we have already discussed about education or this farming, what are the other areas that we need to focus for development as to bring development as a whole? देखिए अगर आप कहोगे कि रूरल एरियाज में कौन से ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे मेजर डेवलपमेंट focused. या तो फोकस की जरूरत है, तो मुझे लगता है हेल्थ केयर सिस्टम। तो रूरल एरियाज में जितने भी लोग मतलब अभी फिलहाल हैं, तो सबसे जरूरी प्रॉब्लम होता है हेल्थ केयर। दे डोंट हैव दैट प्रॉपर काइंड ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। एंड सबसे जरूरी बात ये भी हो जाता है कि कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो डिस्टेंस में मतलब अस्पताल या फिर काइंड ऑफ होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, तो वो लोग वहां पे नहीं जाते हैं। और एक दूसरा आई थिंक कारण भी है जो उसके साथ इंटर रिलेटेड है, मुझे लगता है क्या बोलते इसको, अंधविश्वास काइंड ऑफ। दे आर स्टिल बिलीव इन यूजिंग सम काइंड ऑफ टेक्निक्स, ओझाज एंड काइंड ऑफ, हाँ, तो ये बाबाज काइंड ऑफ, ओझास काइंड ऑफ, देयर आर सम काइंड ऑफ अंधविश्वास इन देयर माइंड। तो मुझे लगता है वो भी एक फैक्टर है। कहीं ना कहीं हेल्थ केयर का जो इश्यू है
मुझे लगता है उसमें ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए। अगर आप असम की बात करते हो तो फिलहाल तो गवर्नमेंट ऑफ असम ने बहुत सारे चेंजेस हेल्थ केयर सिस्टम में लाया है कि अगर कोई डॉक्टर एमबीबीएस किसी ने पास कर लिया है तो आफ्टर कंप्लीटेशन हिज एमबीबीएस he or she has to be sent to a rural area for 2 years। तो उस 2 सालों के लिए उन लोगों को रूरल एरियाज में सर्विस के लिए भेज दिया जाता है। तो मुझे लगता है ये बहुत सराहनीय काइंड ऑफ डिसीजन है। तो ये बहुत अच्छा किया। अगर उसको छोड़ के भी 20 बेड या फिर 30 या फिर 100 मतलब 100 बेड्स वाले अस्पताल थोड़ा थोड़ा काइंड ऑफ बनाया गया है, वो भी एक सराहनीय पदक्षेप मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ असम ने किया है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें गवर्नमेंट ने भी किया हुआ है। तो ये एक मेजर मतलब सेक्टर है। हाँ इम्प्रूवमेंट के लिए हाँ, इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे चाहिए लगता है। और सेकेंडली मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो पुअर टेक्निक्स मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पुअर टेक्निक्स पे जो मतलब खेती बाड़ी चल रहा है, तो मुझे लगता है जो नए अपडेट्स जो मशीनरीज है या फिर जो न्यू टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर है, इन टेक्निक्स को समझाने के लिए भी गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत स्टेप्स लेना चाहिए। क्योंकि लोगों को अगर पता नहीं होगा कैसे किया जाता है नया वाला कोई काइंड ऑफ थिंग, तो कैसे करेंगे वो लोग। like giving them हाँ। only that should not do। शुड नॉट डू। क्योंकि मुझे लगता है उसमें भी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि कैसे थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे न्यू मशीनरीज के बारे में उन लोगों को अपडेट किया जा सकता है इन देयर ओन लैंग्वेज। मैं नहीं कहता कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, लेकिन आप अगर एक बात कहोगे तो गवर्नमेंट ने अभी एक चैनल है, गवर्नमेंट चैनल डीडी किसान, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं। लेकिन आप अगर रूरल एरियाज की बात करते हो, मैं नहीं कहता टीवी नहीं है, आजकल करंट और टीवी हर एक के घर में होते हैं, लेकिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है। और अगर आप दिल्ली से कोई प्रोग्राम टेलीकास्ट कर रहे हो तो उन लोगों के भाषा में हिंदी में होगा, क्योंकि हमारा नेशनल लैंग्वेज तो हिंदी है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो लोगों को प्रॉपरली हिंदी आना भी तो चाहिए। लैंग्वेज इज द बैरियर, लैंग्वेज बैरियर की प्रॉब्लम से वो भी समझ नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, मुझे लगता है ये एनालाइज करना पड़ेगा। एंड एनालाइज करके ये जो प्रॉब्लम्स है, मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, like the state government can Yeah. play a role in this Yeah, to state telecast those in local languages Yes, so yes, that yes. the local people can understand। या और इस बारे में अगर आप डायरेक्टली जाके तो चीफ मिनिस्टर से बात नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, मुझे लगता है उन लोगों को इसमें एक्टिव पार्ट लेना चाहिए। हमें भी जितने भी ऐसे रूरल एरियाज में जितने भी लोगों को जो इन्फॉर्म लोग हैं, मुझे लगता है उन लोग को इसमें एक्टिव पार्ट लेके वो जो कम्युनिकेशन जो गैप बन जाता है वो कम्युनिकेशन बिल्ड करना चाहिए। They should come up and help। या So, ऐसे मुझे लगता है ये प्रॉब्लम्स मतलब सॉल्व हो सकते हैं। अगर इसको छोड़ के भी ये देयर आर सो मेनी सेक्टर्स वेयर वी नीड मेजर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट इशू। So as you have already talked about transportation and inavailability, the people they are using old means like still now to carry those people to hospitals and all, which are causing death and all. So maybe the people they are financially weak and they can't support it. As also we can see most villagers, people in rural areas, they earn their living on daily wages. And now in this situation it has become more problematic for them to even earn their daily living. So do you think also financial problems has also a great impact on their inability to develop? Look, जहाँ तक रहता है कि फाइनेंशियली वीक है, वो तो है, क्योंकि उन लोगों के पास उतना सोर्सेस नहीं होता है। अगर किसी के पास थोड़ा बहुत जमीन भी है तो उन लोगों के पास उतना एफिशिएंटली फाइनेंस नहीं है या फिर सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि वो सारे खेतों में मतलब उतने सारे खेत कर सके। लेकिन जब आप बात करते हो हेल्थ केयर की, देखिए वी पीपल हैव सम बेसिक नीड्स लाइक रोटी कपड़ा और मकान। अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइमरी हेल्थ केयर इज ए राइट टू एवरीवन। अगर आप छोटे से छोटे चीजों के लिए भी अगर आप किसी को बुखार होके मतलब नॉर्मल सा बुखार होके अगर इफ somebody
कॉजेज डेथ, तो ये मुझे लगता है दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर जैसे कि कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, एट द सेम टाइम प्राइमरी हेल्थ केयर इज ऑल्सो अ बेसिक थिंग या। तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट जितने भी उन्होंने स्टेप लिया हुआ है सारे के सारे, तो मुझे लगता है इसे एक बेसिक थिंग में कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे कि आप अगर राइट नाउ The government has a Yeah. role and they should take initiatives. यस यस, अगर आप फिलहाल आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हम हमारे स्टेट का खराब है या फिर कुछ है, लेकिन जो हमें दिखता है जो अच्छी चीज है हमें अच्छी चीजों को सराहना करना चाहिए। तो मुझे लगता है दिल्ली गवर्नमेंट जो हेल्थ केयर के सेक्टर में कर रही है वो बहुत अच्छा है। जैसे कि आप देख लो कहीं पे भी अगर कहीं पे एक्सीडेंट्स या फिर कुछ हो जाता है तो उस पेशेंट्स को एज वेरी सुन एज पॉसिबल, अगर किसी पास वाले गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो कहीं भी अस्पताल में अगर आप उसको एडमिट करवा देते हो, देन सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली पे करती है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ गुड स्टेप्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए। और जैसे कि वो एक कैपिटल स्टेट है तो उन लोगों के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, दे डोंट हैव द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम लाइक आवर्स। लेकिन हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन जो क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन या हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो बेसिकली मैं यही कहूंगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर एक बेसिक नीड्स है जो सबको मिलना जरूरी है और ये अधिकार भी है काइंड ऑफ। Yeah, also, as you have talked about this government supporting healthcare, here in Assam also they are giving some things like some cards, but we can see that those cards are not applicable most of the times. Only at certain times or we can apply those. Yes, yes, yes. So that should be, I think, so kept in mind by the government. No, first of all, these are the schemes that planned by government of India. जैसे कि प्रधानमंत्री बीमा योजना समथिंग, और इसमें क्या होता है कि स्पेशल बीमारियों को लेके ये कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि मेजर डिजीज लाइक किडनी डिजीज एंड ऑल ये। और जहां तक हेल्थ केयर की बात चल रहा है तो मैं और एक बात आपको बताना चाहूंगा, मेल न्यूट्रिशन। दिस इज वन ऑफ द वेरी मेजर प्रॉब्लम इन रूरल एरियाज। अगर आप देखोगे तो मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम बहुत है नाउ ए डेज। देखिए आप आंगनबाड़ी या फिर कहीं स्कूल में भी जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो उन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट प्रोवाइड्स कर रही है कि प्रॉपर खाना दें या फिर कुछ काइंड ऑफ जो मेडिसिन या फिर जितने भी डाइट्स उन लोगों को मतलब रिक्वायर्ड होते हैं उन लोगों को दिया जा रहा है। बट स्टिल मेलन्यूट्रिशन इज हैविंग ए बेसिक प्रॉब्लम इन आवर रूरल एरियाज। तो मुझे लगता है उसमें भी गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत फोकस करके जैसे भी हो उसको टेकल अप करना चाहिए। Yeah, help people or bring awareness among them. So thank you, brother, for you have provided a lot of insight on this topic. We have covered on a lot like education, healthcare, agriculture. So, but today we have to wrap up. We will again talk some another day. So, basically we have concluded that there are a lot of aspects where we can improve. Yes. And also lack of awareness is one of the most biggest problem in our rural areas. yeah Right. And also the government has to take some steps, or the NGOs, they are already taking, but there are more to do. And More also to do. we at individual level we can do as improve as this developments in rural areas are improving, but there are more to do. More to do. And a lot we can do. और रिसोर्सेज भी बहुत है हमारे यहाँ, बहुत सारे रिसोर्सेज है Yeah. जिन लोगों को हमें यूटिलाइज करना है। Yeah. यूटिलाइजेशन इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि नहीं हो रहा है। मुझे लगता है सबको अगर यूटिलाइज करेंगे तो मुझे लगता है वी विल सी अनदर पिक्चर। Yeah, so thank you for coming. थैंक यू। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे भी बात करके बहुत कुछ जानकारी मिली है। Thank you. Thank you. We will have more lively discussions like this. So thank you for coming. Thank you. थैंक यू।